جب سے یہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھٹا ہوا تب سے عمران خان ایک بات کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پہلے 1971 میں بھی اپنی ہی عوام کے اوپر ظلم کیا، جو قوم کا مینڈیٹ تھا اس کو چوری کیا، اور اس کے نتیجے میں کشیدگی ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ تو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ وہی حرکتیں پاکستان کے اندر کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، پہلے تو ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا اور پھر ان کا مینڈیٹ چوری کیا، پھر ان کو اب جیل میں بھی تو نام وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ وہی کنڈیشنز کریٹ کر رہے ہیں جو آپ نے 1971 میں کی تھی، جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا تھا، اور خان صاحب نے تقریباً یہ بات کو 2-3 دفعہ کی ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی عوام ہی آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ کھڑی ہو، تو پھر اس ملک کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ ہمارے یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، حافظ صاحب، پہلگام میں یہ جو دہشت گردی ہوئی اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کوئی نہیں انڈو کر سکتا، یہاں کے بچہ مائیں بھی ہیں اپنے بچوں کو دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہی جو اس طرح کی 2 نمبر دوغلی باتیں ہوتی ہیں، چاہے اس کا حقیقت سے تعلق ہو نہ ہو۔ میں آپ کو دکھا دوں کہ بڑے عرصے سے ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا کہ بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، کے پی کے میں ایک بہت بڑی علیحدگی کی تحریک ہے، پی ٹی ایم وہ نان ملیٹنٹ ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا نسیم بلوچ کا بیان، تو بلوچستان کے نیشنلسٹ لیڈر ہیں نسیم بلوچ، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ My brave Pashto brothers, I ask you today, how much longer will you wait? How long we will wait? How much longer will we beg for justice from the same hands that kill our children? How much longer will we plead for rights from a state that sees us as its enemy? How much longer will we participate in a system that is designed to crush us? Pakistan will never trust the Baloch, the Pashtun or the Sindhi. We have tried everything: elections, assemblies, courts, and every time we have been met with betrayal, bullets, and bloodshed. The time for waiting is over. The time for freedom has come. Pashto brothers, I must say, do not wait any longer. بہرحال یہ کافی لمبا ان کا اسٹیٹمنٹ تھا، لیکن جس میں یہ یہی کہہ رہے تھے کہ پشتونوں کو اکٹھا کر رہے تھے پی ٹی ایم کو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا، ہم نے ہر چیز کا قانونی راستہ بھی اختیار کیا لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلوچ، پشتون اور سندھیوں کے اوپر ظلم ہوتا رہا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ وقت آ گیا کہ آزادی کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ اوبویسلی ایز اے پاکستانی میں نہیں چاہتا، یا میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا یہ کہ پاکستان ٹوٹے، پاکستان کو متحد رہنا چاہیے، لیکن جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس کا ایک ہی ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ دار پولیٹیشنز نہیں ہیں، چاہے وہ جتنے کرپٹ کیوں نہ ہو، جتنے نکمے نلائق کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنے ڈیوائیڈڈ کیوں نہ ہو، اس کی ذمہ دار صرف ایک ہی اینٹی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کون ہے۔ انہوں نے پہلے 1971 میں بھی اسی طرح کی حرکتیں کی جس کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا، اس کے بعد یہ بلوچستان میں کیا کرتے رہے، پی ٹی ایم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مسنگ پرسنس کون ہیں، یہ سارے پولیٹیشنوں نے نہیں کیے۔ اور اب عمران خان کی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو پنجاب میں انہوں نے جو ظلم ڈھائے ہیں یہ پولیٹیشنوں نے کیے۔ ہاں، پولیٹیشنز ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹوں کے لیے، جیسے اب پی ایم ایل این ملی ہوئی ہے، شہباز شریف کی حکومت ملی ہوئی ہے، لیکن ان کی نہ کوئی سے ہے نہ ان کی حکومت ہے۔ یہ پہلگام میں جس نے بھی یہ حملہ کروایا، اگر انہوں نے ہی کروایا، جو کہ لگ یہی رہا کیونکہ پہلے جو پریسیڈنس ہے وہ یہی ہے، یہی اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے، اس کا انہوں نے ان کو نہیں بتایا ہوگا۔ میں آپ کو یاد کرا دوں، اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے وہ یہی آرمی چیف تھے، اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی۔ پلوامہ میں بھی اگر انہوں نے کرایا ہوگا تو عمران خان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا، اسی طرح جس طرح جب کارگل ہوا تھا تب نواز شریف کو پتہ نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی شرارتیں جنہوں نے کروائیں وہ ہمیشہ پولیٹیشینز نہیں کرواتے، چاہے وہ مان لیا بڑے کرپٹ ہیں، لیکن پھر جب ان کی دھلائی ہونے کا وقت آتا ہے تب یہ پولیٹیشنوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو پہلے ایون اپ انٹل 2019 جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تب بھی عوام جو تھی وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہمیشہ، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں لگ رہا۔ یہ تو خیر ایک بلوچ ہیں جن کا میں نے آپ کو دکھایا، ذرا آپ کو دکھاتا ہوں ادھر کہ ابھی کل لکی مروت میں کیا ہوا۔ یہ لکی مروت کے پی کے کا ایریا ہے، وہاں پر لکی مروت کی پولیس جو ہے اس کا پاک فوج کے ساتھ سٹینڈ آف ہوا، اور وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر ظلم ڈھانے آ جاتے ہیں، آپ ذرا بارڈر پہ جائیں نا، وہاں پہ لڑیں جہاں پہ لڑنے کی جگہ۔ سنیے ذرا، بڑی لمبی ویڈیو لیکن میں تھوڑی سی چلاؤں گا۔ دماغ خراب ہے آپ کا، ادھر کشمیر پہ جاؤ نا، کشمیر پہ جاؤ نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، کشمیر پہ جاؤ نا، ادھر کیا کر رہے ہو؟ آپ کا جنرل بھی آ جائے پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو، اگر وہ ڈالری جرنیل بھی آ جائے پھر بھی وہ کچھ نہیں کرے گا۔ جنرل بھی ہم آپ کی بوٹ کی نوک پہ رکھتے ہیں،
बकवास जो करते करना है हो, करो। बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मरो तुड़ी से, याद रखो। ये हमें लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी है, नहीं लड़की नहीं खड़ी है। बोल करे तो बमा बदमाशी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। तो इन्होंने इसको ऑब्वियसली एक एथनिक इशू बना दिया पंजाबियों का, और ऑब्वियसली पूरे मुल्क के दिलों में पंजाबियों के खिलाफ इन्होंने नफरत डाल दिया अपने करतूतों की वजह से, अपने कारनामों की वजह से। इसी तरह एक और पठान साहब की वीडियो कल से वायरल हुई हुई है, जरा वो भी देख लें कि वो क्या कह रहे हैं। इंडिया वालों, अगर इस बार पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो हम पठान कौम नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम तमाशाई बनेंगे। हम इस बार और पाकिस्तानियों को मौका दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में सारी कौमें जिंदा हैं। अगर कोई अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को समझता है, उसके मुंह के ऊपर एक ये तमाचा है कि जो बड़े बड़े बुलंदो वाला दावे किए गए थे जब इस मुल्क को बनाया गया था, क्या क्या दावे किए गए थे। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली ये बाद में मुझे समझ आई कि जो आइडियोलॉजी थी, जो फाउंडेशनल वैल्यूज थी, वही गलत थी, इसके नतीजे में अब ये बिफर रहा। पहले इन्होंने 1971 चले उसका कहते हैं वो कंटिगुअस एरिया नहीं था, पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर नहीं मिलता था, इसलिए इंडिया ने शरारत कर दी। कभी कोई ये बात नहीं करते कि इन्होंने पहले वहां पे हिंदू मारने शुरू किए जो वेस्ट बंगाल में गए, और फिर इन्होंने पतलूने खोल खोल के उनके सरों पे गोलियां मारी। बांग्लादेशी कहते हैं कि तकरीबन 30 लाख बंगालियों का खून किया हमारी बहादुर अफवाज ने, और लेकिन लोअर एस्टिमेट ये है कि 3 लाख, 30 लाख नहीं 3 लाख। गजा में कितने मरे हैं अब तक? तकरीबन 50,000, उनमें से भी कोई 20-25 हजार जो हैं वो हमास के फाइटर्स हैं। ये अभी उन्होंने चुपके से स्टेटमेंट दे दी कि आधे से ज्यादा कैजुअलिटीज जो हुई हैं वो हमास की हुई हैं। हमास से खुद ये स्टेटमेंट दे दी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए औरतें और बच्चे मर गए, ऑफ कोर्स वो भी मरे, लेकिन जरा कंपेयर करें, वहां पे 50,000, यहाँ पे 3 लाख इन्होंने मार दिया। तो यूएन के मुताबिक तकरीबन 15,000 के करीब बलोचिस्तान के लोग मिसिंग हैं, और बलोचियों के मुताबिक तकरीबन 50,000 लोग मिसिंग हैं। पीटीएम वालों के साथ भी इसी तरह होता रहा। जिन्होंने पीटीएम के बारे में बात की उनकी खूब धुलाई इन्होंने की वहां पे, और अब पंजाब में भी ये काम हो रहा है। तो बहरहाल इस हालत में अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जी इमरान खान से एक ट्वीट दिलवाई है, और वो ट्वीट बड़ी मुबहिम सी लग रही है। उसमें उन्होंने पहले मोदी जी को पेला, फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले कह दिया था ये दोबारा होगा, और फिर उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी को रगड़ दिया कि ये कभी उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए इसलिए। इमरान खान को उनकी बहनों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान को पिछले 6 हफ्ते से कोई नहीं मिल सका सिवाय उनके सो कॉल्ड वकील के, जिसका नाम फैसल चौधरी है, जिसके ऊपर पीटीआई के अपने लोगों के बहुत ज्यादा रिजर्वेशन हैं। वो नहीं मान रहे कि जो फैसल चौधरी बाहर आके बता रहे हैं वो इमरान खान के जो व्यूज हैं उनकी ट्रू रिफ्लेक्शन है। हाउएवर ये कहना मुश्किल है कि ये वाकई इमरान खान का पूरा बयान है या नहीं, लेकिन ये बयान इसलिए काउंट नहीं होता बिकॉज उनके पास तो अंदर ना कोई अखबार जाता है, ना कोई मोबाइल फोन है, ना उनके न्यूज पढ़ने का कोई तरीका है। उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा बाहर। उन्हें तो ये सीरियसनेस का ही नहीं पता। और उन्हें क्या पता, क्या उनको एविडेंस दिखाया गया? क्या इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने ये बताया कि देखें जी हम पे झूठा इल्जाम लग रहा है, दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज नॉट ट्रू? तो उनको तो कुछ भी नहीं पता। तो अगर वो उन्होंने बड़े होकर कोई इस तरह का बयान दे भी दिया कि मैं चलें जरा यूनिटी दिखाता हूं, तो ये काम इस वक्त बिक नहीं रहा। क्योंकि आप जितने कमेंट्स देखें इमरान खान के हवाले से, या जो भी इमरान खान के चाहने वाले हैं उनके नीचे आप कमेंट्स पढ़ें, तो लोग कह रहे हैं कि अब हम अवाम न्यूट्रल हो गए। जिस तरह इन्होंने कहा था ना इमरान खान को उतारने से पहले या उतारने के बाद कि जी अब हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो कैसे न्यूट्रल है वो हमें नजर आ रहा है कि कितने न्यूट्रल है। तो उसी तरह अब अवाम कह रही है, जैसे ये भी पठान भाई ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, अब हम तमाशाई बन के देखेंगे ये काम। सो इसका फायदा ऑब्वियसली एक ही कौम को होगा, इंडिया को होगा इसका फायदा, अगर वो कोई मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं। मुझे नहीं पता वो करेंगे या नहीं करेंगे, अब हम देख रहे हैं। अभी कल वो मौलवी साहब की भी रात के 2 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि वो जी हमें 24 से 36 घंटे के अंदर इंडिया ने हम पर हमला कर देना। अब लग तो ऐसे ही रहा है कि होगा तो सही जरूर हमला, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि कितना हमला होगा। जो इंडिया के हॉक्स हैं वो कह रहे हैं कि कश्मीर की हम सलामी स्लाइसिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा काट के निकालेंगे। कुछ कह रहे हैं पंजाब और सिंध के बॉर्डर को भी हॉट कर दिया जाएगा, और एक खदशा ये भी है कि उधर से तालिबान भी चढ़ाई कर देंगे। अभी तालिबान लीडरशिप के साथ भी इंडिया की लीडरशिप मिली है, और उन्होंने पूरा उनको ब्रीफ किया होगा। तकरीबन 120 से ज्यादा मुल्क हैं जिनको इंडिया ने रीच आउट किया। एक जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि पहले जो ट्रंप ने कहा था कि 1500 साल से ये लोग लड़ रहे हैं कश्मीर के ऊपर, सो ही शोड नो इंटरेस्ट, ही प्रॉब्ली वाजंट ब्रीफ्ड। उनको ट्रंप को कोई तरह दुनिया का नॉलेज नहीं है। लेकिन अब मार्को रूबियो ने कल डॉक्टर जयशंकर से और शहबाज शरीफ से उन्होंने फोन पे बात भी की है, और दोनों को उन्होंने, जो ऑफिशियल न्यूज आई है वो यही आई है कि उन्होंने दोनों साइड्स को अर्ज किया है काम को और उसको डी एस्केलेट करने का। और लेकिन साथ उन्होंने पाकिस्तान को ये भी कहा है कि जो
दहशत गर्द हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तो वो तो पाकिस्तान की तो ऑफिशियल पॉलिसी है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो हम कैसे उनको इंसाफ के कटहरे में लाएं। तो ये जो डबल गेम्स खेलते रहे, अगेन मेरा ये बिलीफ नहीं है, लेकिन मैं ये एक लॉजिकली बात कर रहा हूँ कि अगर इस दफ़ा इन्होंने ये हरकत नहीं भी की, अगर किसी और फैक्शन ने या इंडिजिनस कश्मीर के लोगों ने अपने तौर पे ये हरकत की है कि जो उनके 27 शहरियों को कोल्ड ब्लड में कत्ल किया, तो फिर भी इतना बड़ा इन्हीं का फेलियर है, क्योंकि जब इनको मुंबई का डोसियर दिया गया, जो नजम सेठी साहब खुद कहते हैं कि मैं अजमल के साहब के महल्ले में गया, उसके माँ बाप से इंटरव्यू भी किया, जब पठानकोट का इनको जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पठानकोट की इंस्टॉलेशन के अंदर बुलाया उन्होंने, यानी क्या आप सरगोदा एयरबेस में इंडिया के किसी भी को अंदर आने देंगे? उन्होंने कहा चले हम ला देते हैं, हो सकता है कि इनके कंट्रोल में ना हो। तो वो लेके गए, उन्होंने उधर इन्वेस्टिगेशन की, और जब इनकी बारी आई इंडिया के टीम की पाकिस्तान आने में, इन्होंने आने से इनकार कर दिया। ये सारी हिस्ट्री मौजूद है। ऊपर से आपके ये जो ख्वाजा आसिफ है, सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर, जिसके हाथ में तो कुछ नहीं है, डिफेंस वगैरह सारा कुछ उधर से ही होता है, हेडक्वार्टर से ही होता है, वो दुनिया के सामने फड़ियां मार रहा है। ये तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, इनको कुछ पता ही नहीं, इनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती। वो कहता हाँ जी हम काले कारनामे करते रहे हैं अमेरिका के कहने पे, यानी आप खुद कन्फेशन कर रहे हैं, बाद में चाहे जो मर्जी पलटियां आप खाएं, लेकिन आपने दुनिया के सामने आप इकरार कर रहे हैं कि हाँ हम काले कारनामे करते रहे हैं। क्या अमेरिका ने आपको कहा था कि आप कश्मीर के अंदर मुजाहिदीनों को भेजें जब वो 89 में अफगानिस्तान से उनका काम खत्म हो गया था? मुशर्रफ साहब खुद अपनी किताब में लिख चुके हैं, वजाहत के साथ इंटरव्यू पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम भेजते रहे, हम भेजते रहे, आप यू नो वी शुड। तो आपकी पूरी एक हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए कोई भी दुनिया इस वक्त आप ट्रस्ट नहीं कर रही। यस वो ठीक है, वो दुनिया एक तरीके से चलती है, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को एविडेंस देना चाहिए, लेकिन वो आपके साथ नहीं खड़े। दूसरी जी, इंडिया ने पाकिस्तान के चैनल्स ब्लॉक कर दिए हैं, अभी मोहम्मद इजाब ने भी रेंट दी है, वो उसने भी ब्लॉक कर दिया, बुशा शेख, इन सारों को आग लगी हुई है, और बड़ा चीखे मार रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किधर गई? मेरा 2020 में इमरान खान के दौर में यूट्यूब का चैनल ब्लॉक हो गया था, फिर उसके बाद 2023 के बाद 22-23 में तो ये पाकिस्तान के जो पीटीआई के जो जर्नलिस्ट हैं, ये इमरान नियाज खान और ये जितने भी बड़े बड़े मोहित पीरजादा वगैरह, उन सबके चैनल्स इन्होंने ब्लॉक कर दिए। आप ये हरकतें करते हैं, आपका अपना स्टैंडर्ड एक है। ये वही लोग हैं जिनको इंडिया में सेकुलरिज्म बड़ी पसंद है। मैं देख रहा था ध्रुव राठी की बड़ी तारीफ हो रही थी। आई लाइक ध्रुव राठी। आई नो इंडिया के जो राइट विंग के लोग हैं वो नहीं पसंद करते। ध्रुव राठी इज अ लिबरल एट हार्ट, और लिबरल लोग जो होते हैं वो इसी तरह की ही लाइन रखते हैं। मैं पाकिस्तान का एक तरीके का ध्रुव राठी हूँ, इन अ सेंस कि मैं लिबरल हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अपने लिबरल पसंद नहीं आते, इनको दूसरे मुल्कों के लिबरल बड़े पसंद आते हैं। उसी तरह जिस तरह इनको नोम चॉम्स्की तो बड़ा पसंद आएगा जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की को क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन इनको अपना हुसैन हक्कानी नहीं पसंद आएगा। तो उसी तरह इनको दूसरे मुल्कों में सेकुलरिज्म तो बड़ी अच्छी लगती है, अपने मुल्क में इनको इस्लामी फैशिज्म चाहिए। तो इसीलिए ये लोग मुनाफिक हैं, इनकी वैल्यूज गलत हैं, इनकी डायरेक्शन गलत है, जिसका खमियाजा अब इनको उठाना पड़ रहा है। आई होप के, खैर मेरे होप से करने से तो कुछ नहीं होता, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान टूटे, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस नहज पे लाके खड़ा किया है, इस वक्त उनकी छुट्टी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता इंडिया जंग करता है या नहीं करता, लेकिन अगर करता है, जिससे पता चल रहा है बड़ा डर फैला हुआ है इस वक्त, ये हर एक पैर जाके जोड़े हैं। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है अमेरिका में, उन्होंने ट्रंप से अपील की है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। इनके पास एक ही चीज़ है, एक न्यूक्लियर वॉर की धमकी इनके पास, जो कि अगेन ऐसा नहीं होता कि आपने एक चौकी पे हमला किया तो वो न्यूक्लियर बम चला दें, ऐसा नहीं होता। ये एस्केलेशन लैडर होती है, और स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हैं, मूव होती है, फिर काउंटर मूव होती है, फिर मूव होती है, फिर काउंटर मूव होती है। तो उसके बाद एक स्टेज आती है कि अगर टोटल एनाइलेशन का खतरा हो पाकिस्तान का, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वहां पे वो एटम बम चला सकते हैं। लेकिन अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर की को स्लाइस भी करना शुरू कर दें, इतना सा ले लें, बीच में बफर जोन बना लें, फिर थोड़ा सा ले लें, तो इसके ऊपर भी ये एटम बम नहीं चलाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दुनिया की जितनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, ये सारे उसके खिलाफ जाता है। मैंने एग्जांपल आपको दी है, मैं यूक्रेन रशिया वॉर को बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। वो पुतिन कहता है कि आप फ्रेंच स्कैल्प देंगे, ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो देंगे या अमेरिकन अटैकम्स देंगे तो जी हमारी रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी न्यूक्लियर। वो उन्होंने दे दिया। फिर ऐसे तो उन्होंने इसीलिए वो एस्केलेशन लैडर पे एक एक स्टेप पे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पूरा ही अंदर चले जाते हो। उन्होंने पहले दिन ही यूक्रेन को सारा सामान नहीं दिया, और अभी भी नहीं दिया, बहुत सारा सामान दे सकते थे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया अगर लिमिटेड वॉर भी करता और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर को लेने की कोशिश भी करता, फिर भी ये सीधा न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट के पास बात नहीं जाएगी। ये इनका ट्रम्प कार्ड है, बल्कि एक ही कार्ड है इनके पास के पास, हम न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग करते रहें। दूसरा, इनको जो ज्यादा क्रेडिबल थ्रेट है इंडिया के लिए, जो शायद इंडिया सोचने पे मजबूर हो जाए, वो ये कि क्या चाइनीज इन्वॉल्वमेंट
कितनी होगी ना। ऑब्वियसली डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो इंटेलिजेंस की जो बात है, जैसे यूएस इंटेलिजेंस का जो रोल है इंटेलिजेंस शेयरिंग का वीज़ावी यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है, उसमें उन्होंने एक हफ्ते के लिए ट्रंप ने बंद किया ज़ेलेंस्की को मजा चखाने के लिए, जब वो उसका फरवरी में ओवल ऑफिस में बड़ी फियास्को जो हुआ, तो उसके बाद उसने एक हफ्ते के लिए बंद की। तो कुर्स्क तकरीबन पूरा का पूरा चला गया, फिर बाकी का भी चला गया यूक्रेन के हाथ से। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्रिटिकल होती है। उसी तरह चाइना की साइबर वॉरफेयर, क्या उसके लिए इंडिया प्रिपेयर है या नहीं है, ये बहुत सारी चीजें जो है ये टेस्ट केसेस होंगी, क्योंकि बैटलफील्ड के जो टैक्टिक्स हैं वो बड़े बदल गए हैं। अब ड्रोन का क्या वॉरफेयर होगी, क्या ये सिर्फ आर्टिलरी और हॉविट्सर और इसी चीज के ऊपर रहेगी बात? ड्रोन वॉरफेयर कितनी है, क्या ड्रोन की प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी किसकी है? लेकिन ये यूक्रेन और रशिया की तरह प्रोट्रैक्टेड और वॉर ऑफ अट्रिशन नहीं होगी। जनरल बाजवा साहब ने पूरे सहाफियों को ब्रीफ किया था कि हम इंडिया से जंग नहीं लड़ सकते, हमारा तेल नहीं है, तेल खत्म हो जाएगा, 8-10 दिन से ज्यादा हम जंग नहीं लड़ सकते। तो कोई सिचुएशन बड़ी नहीं है, बल्कि मजीद खराब ही हुई है, क्योंकि आप आइसोलेट हुए हैं। टर्की का आपने ड्रामा किया कि टर्की ने आगे हमें बड़ा कुछ दिया, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। टर्की की ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई 100-200 ड्रोन उनको दे दिए हो। सो नेवी पाकिस्तान की नॉन एग्जिस्टेंट है तकरीबन। सो आई डोंट नो ये जंग होगी या नहीं होगी, या ये सिर्फ प्रेशर बिल्ड इतना किया जाएगा कि कम से कम ये जो हाफिज है इसको कम से कम चेंज जरूर करना चाहिए। ज्यादा बेहतर तो यही होगा कि जो इसका होल्ड है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या पूरे पाकिस्तान के स्टेट के अपरेटस के ऊपर, उसको अगर तोड़ दिया जाए तो फिर ही पाकिस्तान आगे जा सकता है, वरना आगे नहीं जा सकता। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वही पीटीएम के लोगों से बात कर सकते हैं, वही बलोचिस्तान के लोगों से बात कर सकते हैं। ये जो बंदूक की जो सियासत क्या है, जो बंदूक की धौंस इन्होंने जमाई है लोगों के ऊपर, बाकी जो एग्रीव्ड पार्टीज हैं आपकी बलोचिस्तान में या केपीके में, इससे बात आगे नहीं बनेगी। अगर ये जंग हो जाती है तो तालिबान उधर से शुरू हो सकते हैं। और पाकिस्तान आपको पता है इतना बड़ा पतला सा मुल्क है और 800-900 किलोमीटर उसकी विड्थ है, ये बड़ी जल्दी से बड़े आराम से सैंडविच हो जाएंगे। और आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट कि पोस्ट वॉर पाकिस्तान का मैप क्या होगा। हाँ, इमरान खान के हवाले से जो ट्वीट की, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। एक तो नहीं लगता कि ये इमरान खान की तरफ से आई हो कि उन्होंने कोई खास बात नहीं की। दूसरा, उन्होंने उर्दू में एक बयान दिया है, उर्दू में भी एक ट्वीट की है, वो थोड़ी डिफरेंट है, जान के उन्होंने डिफरेंट ऑडियंस को एक तरीके से वो मुखातिब हो रहे हैं। एक में वो इंग्लिश में कर रहे हैं, इंग्लिश में उन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की है मोदी जी के लिए, लेकिन उर्दू की ट्वीट में ये उनकी सोशल मीडिया की टीम है वो रगड़ती है। पता नहीं, ये भी हमें नहीं पता कि क्या ये उन्होंने किया या उनकी सोशल मीडिया टीम ने किया। इसमें वो बात कर रहे हैं इंटरनल मामलों के ऊपर कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया है एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई की औरतों के साथ, पीटीआई के लोगों के साथ। सो आई डोंट नो, ये मिक्स्ड मैसेज आ रहा है। अगर खाली इंग्लिश मैसेज तक बात रह जाती तो शायद लोगों में कंफ्यूजन आई थी कि क्या इमरान खान कह रहे हैं लोगों को कि इकट्ठे हो जाओ हाफिज साहब के पीछे। लेकिन जो उर्दू में जो उन्होंने मैसेज दिया, उस मैसेज में उन्होंने तनकीद की है हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया। सो मुझे नहीं लगता कि अवाम मुत्तहिद है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जितना प्रो पीटीआई लोगों के कमेंट्स देखें तो उसमें तो या तो वो न्यूट्रल हो रहे हैं, जाहिर बात है पाकिस्तान से वो भी प्यार करते हैं, वो पाकिस्तान को खराब होता नहीं देखना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि अब हमने इनके साथ नहीं खड़े होना। जंगे ये शुरू करते हैं, छेड़खानियां ये शुरू करते हैं और ऊपर से अपनी आवाम के ऊपर भी जुल्म ये करते हैं और एंड में हमारे पास आ जाते हैं। आप इमरान खान से वीडियो का पैगाम दिलवाएं, फिर पता चल जाएगा। इमरान खान को बाहर लाएं एक हफ्ते के लिए, देखें तो सही, उसको पता तो चले कि हो क्या रहा है। ना उसके पास मोबाइल फोन है, ना उसके पास अखबार जाता है, उसको तो पता ही नहीं है। वो तो जो वकील जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी फीड करेगा, वो उसी के ऊपर वो कमेंट दे देंगे। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। चलें देखते हैं, ये वीडियो जब तक आएगी क्या पता इंडिया का ऑपरेशन शुरू हो चुका हो या फिर पता नहीं होगा या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।